Hello everyone. Today we will discuss vocabulary section of class 8 English NCERT book Purvi. Today we will discuss unit 4. The unit name is environment. Chapter 2nd. The chapter name is harvest hymn. First word is radiance. First word is radiance. Synonym for this word are brightness, glow, brilliance. And Hindi meaning for this word is tej, chamak. And used in sentence, the radiance of the sun lit up the entire sky. जो मतलब रेडियंस ऑफ द सन यानी जो सन की जो तेज चमक थी उसने पूरे आसमान को प्रकाशित कर दिया. Next word is tribute. Next word is tribute and synonym for this word are honor, respect, homage. Synonym for this word are honor, respect, homage and Hindi meaning for this word is Shraddhanjali and used in sentence they paid tribute to the heroes who fought for the country. They paid tribute मतलब उन्होंने श्रद्धांजलि दी उन हीरोज के लिए जो देश के लिए लड़े थे. नेक्स्ट वर्ड इज cherished. Cherished and synonym for this word are beloved, treasured, valued and Hindi meaning for this word is प्रिय या संजोना and used in sentence she cherished every moment spent with her family. मतलब उसने उस प्रत्येक क्षण को जो अपने फैमिली के साथ बिताया था उसने उन क्षणों को सजोया. नेक्स्ट वर्ड इज munificent. Next word is munificent and synonym for this word are generous, charitable and benevolent. Synonyms are generous, charitable, benevolent and Hindi meaning for this word is udar and use in sentence the munificent donation helped build a new school. Next word is counsel. Counsel and synonym for this word are advice, guidance, consultation and use in sentence. First we will discuss this and use in sentence she sought the counsel of her mentor before making a decision and Hindi meaning for this word is pramars. Pramars matlab advice, guidance, consultation. These all are the synonym for this counsel and use in sentence she sought the counsel of her mentor before making a decision. And next word is beneficent. Next word is beneficent and synonyms for this word are kind, charitable, helpful and Hindi meaning is परोपकारी. Use in sentence the beneficent actions of the volunteers helped the community. जो परोपकारी एक्शंस थे वॉलेंटियर के सब सेवक जो वॉलेंटियर्स थे उनके जो वर्क थे परोपकारी वर्क थे वॉलेंटियर्स के उन्होंने हेल्प की कम्युनिटी की. नेक्स्ट वर्ड इज fostered. Next word is fostered and synonym for this word are promoted, encouraged, supported and Hindi meaning for this word is बढ़ावा देना. Use in sentence the organization fostered a sense of teamwork among its members. ऑर्गेनाइजेशन का जो संगठन था उसने अपने जो टीम वर्क को सेंस की थी जो टीम वर्क की उसको बढ़ावा दिया अमोंग इट्स मेंबर अपने मेंबर के बीच में. नेक्स्ट वर्ड इज गारलैंड्स. नेक्स्ट वर्ड इज गारलैंड्स एंड सिनोनिम फॉर दिस वर्ड आर wreaths, flowers, necklace and Hindi meaning for this word is फूलों की मालाएं and use in sentence the bride wore garlands made of
फ्रेश फ्लावर्स एंड मतलब जो ब्राइड थी उसने गार्लैंड्स थी पहनी हुई थी जो फ्रेश फ्लावर से बनी हुई थी, मालाएं पहनी हुई थी जो फ्रेश फ्लावर से बनी हुई थी। नेक्स्ट वर्ड इज opulent. Next word is opulent. And synonym for this word are gorgeous, grand, luxurious, wealthy. And Hindi meaning for this word are bhavya or dhani. Use in sentence. They lived in a opulent mansion with grand chandeliers. Chandeliers मतलब जो दे लिव्ड इन एन ओपुलेंट मैंशन, ठीक है, मैंशंस विद ग्रैंड chandeliers. Next word is plentiful. Plentiful. And synonym for this word are abundant, ample, bountiful. Bountiful. And Hindi meaning for this word is prachur matra mein. Use in sentence. The harvest was plentiful, providing enough food for the year. The harvest was plentiful. जो फसल थी वो क्या थी, प्रचुर मात्रा में थी. Provide enough food for the year, जो काफ़ी भोजन, जो पूरे साल के लिए भोजन है वो प्रदान करने के लिए जो हार्वेस्ट थी वो प्लेंटीफुल थी, प्रचुर मात्रा में थी. नेक्स्ट वर्ड इज पोषम. पोषम. एंड synonyms are heart, embrace, chest. And Hindi meaning for this word is मन में रखना, छाती. And use in sentence. After hearing the news, मतलब न्यूज़ सुनने के बाद, he had to keep his emotions in his possum. उसने जो भावनाएं थी उनको अपने मतलब मन में रखा. नेक्स्ट वर्ड इज next word is ineffable. Ineffable. And synonyms for this word are indescribable, unutterable, beyond words. Indescribable, unutterable, beyond words. And Hindi meaning for this word are अवर्णनीय, अकथनीय. And use in sentence. The beauty of the landscape was ineffable. जो लैंडस्केप भूदृश्य था उसकी जो ब्यूटी थी, सुंदरता थी, वो अकथनीय थी. लिविंग एवरीवन स्पीचलेस. जो प्रत्येक थे वो मूक रहे, चुप रहे. नेक्स्ट वर्ड इज succor. Succor. And synonyms are aid, assistance, relief. हिंदी मीनिंग इज सहायता. यहाँ पे हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, मतलब सहायता है, हेल्प भी यूज हो सकता है. एंड यूज इन सेंटेंस. द वॉलंटियर्स प्रोवाइडेड succor to the victims of the disaster. जो वॉलंटियर थे, सब सेवक थे, उन्होंने क्या है, विक्टिम्स को सहायता है वो प्रदान की. ऑफ द डिजास्टर, जो डिजास्टर के जो विक्टिम थे उनको वॉलंटियर ने सहायता है वो प्रदान की. नेक्स्ट वर्ड इज सिंबल. नेक्स्ट वर्ड इज सिंबल. एंड सिनोनियम फॉर दिस वर्ड इज अ टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. जो हमारा जो सिंबल होता है वो अ टाइप ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट. एंड हिंदी मीनिंग इज झंकार या मंजीरा. एंड यूज इन सेंटेंस. द ड्रमर प्लेड द सिंबल विद ग्रेट स्किल ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस. जो ड्रमर थे उन्होंने क्या किया, जो मंजीरा था उसको एक अच्छी स्किल के साथ प्ले किया जो परफॉर्मेंस थी उसके दौरान. नेक्स्ट वर्ड इज ड्रम. नेक्स्ट वर्ड इज ड्रम. अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बीट या रिदम. एंड हिंदी मीनिंग फॉर दिस वर्ड इज ढोल. एंड यूज इन सेंटेंस. द साउंड ऑफ द ड्रम echoed to the street during the parade. जो ड्रम की जो साउंड थी वो उससे जो परेड के दौरान जो गली के अंदर थी वो गूंज उठी, जो ड्रम की जो साउंड थी वो. नेक्स्ट वर्ड इज ओमनी पोटेंट. ओमनी पोटेंट.
and synonym for this word are all powerful, almighty, supreme. And Hindi meaning for this word is Sarv Shakti Man. Used in sentence, the king was seen as omnipotent, ruling over the land with absolute power. जो किंग थे वो सर्वशक्तिमान मतलब दिखाई दिए, रूलिंग ओवर द लैंड विद एब्सोल्यूट पावर, मतलब एब्सोल्यूट पावर के साथ रूलिंग करते हुए लैंड के ऊपर सर्वशक्तिमान दिखाई दिए. नेक्स्ट वर्ड इज बाउंटी. Bounty and synonyms for this word are reward, abundance, generosity, something given freely in large amounts. And Hindi meaning for this word is upar, inam, udarta, dansilta, sahita. And used in sentence, we enjoyed the bounty of fresh fruits in the orchard. मतलब हमने जो फ्रेश फ्रूट्स जो थे, बाउंटी ऑफ द फ्रेश फ्रूट जो प्रचुर मात्रा में थे, लार्ज अमाउंट में थे, उनको हमने आनंद लिया ओरचार्ड के अंदर, जो बाग था उसके अंदर. नेक्स्ट वर्ड इज सोइंग. नेक्स्ट वर्ड इज सोइंग एंड सिनोनिम्स फॉर दिस वर्ड आर प्लांटिंग, कैटरिंग, सीडिंग. एंड हिंदी मीनिंग फॉर दिस वर्ड इज बोना. यूज इन सेंटेंस, दे बिगेन सोइंग सीड्स इन द फील्ड फॉर द न्यू क्रॉप. उन्होंने क्या है, खेत के अंदर जो बीज थे उनको बोना शुरू किया न्यू क्रॉप के लिए, नई फसल के लिए. नेक्स्ट वर्ड इज न्यू गार्नर्ड. न्यू गार्नर्ड एंड सिनोनिम फॉर दिस वर्ड आर रिसेंटली गैदर्ड. मतलब हाल ही में जो इकट्ठे किए हुए, कलेक्टेड और स्टोर्ड, इकट्ठे किए हुए हो या स्टोर किए हुए, एक्सेप्टली क्रॉप और हार्वेस्ट, फसल या मतलब फसल के लिए. एंड हिंदी मीनिंग फॉर दिस वर्ड आर नव संग्रहित या अभी अभी इकट्ठा किया हुआ. द विलेजर्स सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल विद न्यू गार्न क्रॉप. जो विलेजर्स थे, जो ग्रामीण थे, ग्रामीणों जो थे, उन्होंने क्या किया, फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जो अभी अभी जो संग्रहित की गई फसल के साथ. नेक्स्ट वर्ड इज बर्डन. Next word is burden. Synonym for this word are load, weight, responsibility. And Hindi meaning for this word is bhar. Use in sentence, she felt the heavy burden of his responsibilities at work. उसने क्या है, हैवी बर्डन, भारी मतलब बोझ महसूस किया अपनी जो उसकी जिम्मेदारियां थी काम पे, जो काम पे जो जिम्मेदारियां थी उनको भारी महसूस किया. Next word is eternal. Next word is eternal and synonyms are everlasting, timeless, infinite, immortal. And synonyms जो ये थे हमारे everlasting, timeless, infinite and immortal. And Hindi meaning are शाश्वत, अनंत, नित्य, अविनाशी. And use in sentence, the truth is eternal and cannot be destroyed. जो ट्रूथ था वो क्या था, अनंत था, अविनाशी था, इसलिए वो नष्ट नहीं हो सकता था. सॉरी, नाश जो सॉरी ये प्रेजेंट में है. द ट्रूथ इज एटर्नल. जो सच है, जो ट्रूथ है वो क्या है, अविनाशी है और वो नष्ट नहीं हो सकता है. नेक्स्ट वर्ड इज प्रोज. प्रोज. नेक्स्ट वर्ड इज प्रोज एंड सिनोनिम फॉर दिस वर्ड इज लॉन्ग नैरो ट्रेंसेस. जो नैरो मतलब लंबे और पतले जो खड़े होते हैं, मेड इन द ग्राउंड, जो जमीन के अंदर बने हुए थे, बाई अ प्लो ऑफ प्लांटिंग सीड्स. सीड्स को मतलब प्लो करने के लिए, प्लो करते हैं जब हम प्लांटिंग सीड्स के, मतलब उनको प्लांट करने के लिए, लगाने के लिए सीड्स को प्लो के द्वारा जो खड़े बने हुए होते हैं, वो हल की बनी हुई नाली या खांच खेती में. दिस इज द हिंदी मीनिंग फॉर दिस वर्ड एंड यूज इन सेंटेंस, द फार्मर शोड सीड्स इन द क्रॉस. जो फार्मर था उन्होंने जो सीड्स थे वो किसके, जो मतलब फ्रोज बने हुए थे उनमें उनको बोया. नेक्स्ट वर्ड इज हिम.
Next word is hymn, and synonym for this word is a religious song or poem usually sung in praise of God. Hindi meaning for this word is bhajan, स्तुति गीत, ईश्वर की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत। मतलब जो ईश्वर की प्रशंसा के लिए जो हम गीत गाते हैं उनको हम बोलते हैं हिम। एंड यूज इन सेंटेंस, द हिम फिल्ड द होल विद केयर्ड एटमोसफेयर। जो हिम था, जो मतलब जो भजन था, जो होल, उसने होल को किससे, धार्मिक मतलब जो एटमोसफेयर था उससे भर दिया। नेक्स्ट वर्ड इज दाओ। नेक्स्ट वर्ड इज दाओ, एंड ये होता है यू, सब्जेक्ट फॉर्म होती है इसकी, और इसका हिंदी मीनिंग होता है तू या तुम। यूज इन सेंटेंस, दाउ आर्ट माई फ्रेंड। एंड नेक्स्ट वर्ड इज दी, सॉरी, नेक्स्ट वर्ड इज दी, एंड जो दी होता है वो यू होता है लेकिन ऑब्जेक्ट फॉर्म में, जिसका मीन होता है दी तुझे या तुम्हें। आई गिव दी माई लेसन। नेक्स्ट वर्ड इज डाई। डाई का जो होता है वो यूअर होता है और बिफोर आ कॉन्सोनेंट, बिफोर मतलब कॉन्सोनेंट से पहले यूज होता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है तेरा या तुम्हारा। ओनर, डाई, फादर एंड मदर। एंड नेक्स्ट वर्ड इज दाइन। नेक्स्ट वर्ड इज दाइन, एंड दाइन का जो मतलब होता है यूअर, और यूअर बिफोर आ वोवल, वोवल से बिफोर इसका यूज होते हैं। दाइन हिंदी मीनिंग है तेरा या तुम्हारा, एंड यूज इन सेंटेंस, दिस बुक इज दाइन। नेक्स्ट वर्ड इज हेल। नेक्स्ट वर्ड इज हेल, एंड सिनोनिम फॉर दिस वर्ड इज टू ग्रेट, वेलकम और शो रिस्पेक्ट। मतलब सम्मान दिखाना, स्वागत करना, प्रशंसा करना। दीज आर द हिंदी मीनिंग फॉर दिस वर्ड, एंड यूज इन सेंटेंस, द पीपल हेल्ड द न्यू किंग। जो लोग थे उन्होंने नए राजा का सम्मान किया। नेक्स्ट वर्ड इज सॉरी, एंड दिस इज द लास्ट वर्ड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।